Welcome friends. Today we are going to discuss a very important topic, that is what? That is Poisson distribution. Poisson distribution. Right? Till now what we have done is we have covered binomial distribution. मैंने आपको बताया था, right? Binomial distribution जहाँ पे मैंने आपको बताया था, there are only two possible outcomes. That is what? That is success or failure. Next distribution is what? Next distribution is Poisson distribution. Now what is the difference between Poisson distribution and binomial distribution? First of all, Poisson distribution, it is also what? It is also discrete distribution. Right? Discrete distribution means that here also what is the value that is coming? That value is coming in integral forms, right? It is not a continuous distribution, right? जैसे मैंने आपको बताया था, in case of what? In case of binomial distribution also, but binomial distribution भी हमारे पास क्या है? Discrete distribution है. Reason why they are discrete distribution? Because you are getting what? You are getting integer values in this particular case. Right? Next, in this case, in case of what? In case of binomial distribution, the probability, right? The Poisson distribution, the Poisson distribution is used in those situations where the probability of happening of an event, is very small. Right? मतलब what does it mean? It means that here again also the probability of happening of an event is very very small, but that is not the case of what? That is not the case of in case of binomial distribution. In case of binomial distribution, what we have done is probability of happening of an event is substantially large, right? ऐसा नहीं होगा कि जिस जहां पे probability of happening of an event बहुत कम हो, right? अब coming out to its examples, like for example, for number of accidents on road, right? That is what? That is an example of Poisson distribution. Now why number of accidents on road? Because travelers, right, those people who are traveling by road, they are huge, they are very large, but number of people who met with accidents, they are very very small, right? So probability of happening of an event is very very small, right? Then number of typo errors, let's say if I talk about typo errors in book, again that is an example of what? That is an example of this Poisson distribution. Why? Because आपने देखा होगा बुक्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं? वर्ड्स बुक्स के अंदर लाखों के अंदर वर्ड्स हैं, लैक्स, बट कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर क्या है? कुछ ना कुछ टाइपो एरर हुई हुई है. They are what? They are very very small, right? Now where the case where the happening of an event is very very small, right? That becomes what? That becomes your Poisson distribution, right? Then if I give you more examples in this particular case, let's say the probability of earthquake, right? Probability of what? The probability of occurrence of earthquake, right? Now you know that कितने earthquake आते हैं एक साल के अंदर, कितने earthquake आए, right? उनकी probability क्या है? They are very very small, right? Whenever you have to go for these types of distribution, what you are doing is you are understanding what you are doing Poisson distribution. Now again a very important term, who given this distribution, right? There is a particular mathematician, that is what? Simon Dennis Poisson, right? This mathematician, he has introduced this particular distribution, that is Poisson distribution, right? Now coming to what? Coming to its conditions. Conditions in case of what? In case of Poisson distribution. Now the first thing is the number of trials or experiment. That is what? That is n. That is infinitely large, right? मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, उस केस में जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स आ रहे हैं, they are what? They are infinitely large, right? But this is not the case of what? This is not the case of in case of binomial distribution. Binomial distribution मैंने आपको बताया था, in case of what? In case of binomial distribution, number of trials they are very limited. मैंने क्या किया?
एक कॉइन को उछाला, कॉइन को कितनी बार उछालोगे? 2 बार उछाल लिया, 3 बार उछाल लिया, 5 बार उछाल लिया, राइट? Whereas in this particular case, why I am saying n is very very large? Because what I am doing is I am checking number of words, I am checking number of travelers on road. They are what? They are n. That becomes n, and n it becomes very very large in case of what? In case of Poisson distribution, right? Next, the probability of success. Probability of success is very very small. That is p approaches to what? 0, right? मतलब जो सक्सेस के चांसेस हैं, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे सक्सेस के चांसेस क्या है, सक्सेस के चांसेस 0 को अप्रोच कर रहे हैं, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी? वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और इसको अदर टर्म्स में क्या कर सकता हूं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इट अप्रोचेस टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, इट अप्रोचेस टू व्हाट? इट अप्रोचेस टू 1 इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? मतलब सक्सेस के चांसेस बहुत कम है और क्या है? फेलियर के चांसेस अप्रोच करते हैं 1 को, वो आपकी क्या बन जाती है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, राइट? देन द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, अगर मैंने इसके अंदर एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज व्हाट? एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय m, इट इक्वल्स टू व्हाट? जितने आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हैं, राइट? n जितना है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा p की वैल्यू से, p की वैल्यू 0.00 समथिंग कुछ भी आ रही होगी, अगर इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? दैट बिकम्स माय एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, दैट बिकम्स माय व्हाट? दैट बिकम्स माय m. m इज आल्सो नोन एज व्हाट? m इज आल्सो नोन एज पैरामीटर, राइट? m इज आल्सो नोन एज पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोला जाता है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द कंडीशंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या समझा, राइट? मैंने 3 चीजें समझी। हियर n बहुत बड़ा है, राइट? n की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, राइट? हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मेरे पास बहुत ही मिनिमल है, जो कि अप्रोच कर रही है 0 को। वेयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है मेरे पास वो इतना ज्यादा है, जो कि क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है 1 को। एंड देयर इज आल्सो वन टर्म दैट इज व्हाट? m, जिसको बोला जाता है पैरामीटर, इट बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट? इट बिकम्स इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय p, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? पैरामीटर ऑफ इक्वेशन, राइट? अब इसको एक और तरीके से क्या किया जाता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एंड गिवन बाय गिवन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट? एक फंक्शन द्वारा इसको बताया जाता है, वो क्या है? p ऑफ x इक्वल्स टू x e रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, राइट? ये एक फॉर्मूला बन जाता है, किस केस में? ये फॉर्मूला बन जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। x इक्वल्स टू x मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस हैं, अगर वो मुझे निकालने हो तो वो क्या बन जाता है? e, जो कि log से आया है, नेचुरल log e होता है, e रेज़ टू पावर माइनस m क्या है? वही n मल्टीप्लाई बाय p, m रेज़ टू पावर x, जो कि प्रोबेबिलिटी के मेरे पास कितने चांसेस है, डिवाइड बाय x अगर कर दूंगा, ये मेरे पास एक टर्म, ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा, जो कि क्या है? आपको बता देता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकाली जाती है। e इन दिस पर्टिकुलर केस इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 2.7183, राइट? ये इसकी क्या होती है? आपके पास एक वैल्यू आ जाती है और इसको बोला जाता है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, राइट? वो ये सारी चीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इसमें आपको जो याद रखनी है वो क्या चीजें हैं? एक तो ये तीनों कंडीशंस याद रखनी है, एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, बेसिक फंडा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यही है। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, न्यूमेरिकल किसके ऊपर आएगा? इस फॉर्मूले को आपने हमेशा क्या करना है? याद रखना है। इसी की बेसिस पे क्या है, आपको एग्जाम्स के अंदर एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा? मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है आपके पास बहुत कम है। लेट्स से मैं क्या कर देता हूं, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं कि क्या है। लेट्स से देयर इज वन मशीन and that machine is producing what? That machine is producing bulbs, let's say, right? अब तो एक मशीन है, right? क्या है? there is one machine जो कि क्या कर रही है? bulbs बनाती है, and there is probability that out of
100 बल्ब्स, 2 बल्ब्स जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, राइट। आउट ऑफ 100 बल्ब्स जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए, 2 बल्ब्स डिफेक्टिव है, राइट। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की वो क्या हुई, 2/100 आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लेट्स से आप एक लॉट उठा लेते हो 100 का एंड यू हैव टू चेक, क्या फाइंड, पहली चीज नो बल्ब इज डिफेक्टिव। एक न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एक मशीन है जो कि क्या करती है 100 बल्ब्स में से 2 बल्ब्स को डिफेक्टिव बना रही है, और आपसे पूछ लिया जाता है ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी निकालो कि कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो। कोई बल्ब डिफेक्टिव ना होने का मतलब P ऑफ X ये है डिफेक्टिव, ये आपने क्या निकालना है, 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला वही है e रेज़ पर m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, राइट। अब इस केस में m मैंने आपको बताया था, m क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय b। n क्या है आपके पास 100 लॉट उठाया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, वो क्या है 2 आउट ऑफ 100। तो मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं 2 अपॉन 100 तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। अब क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें पुट कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, e रेज़ टू पावर m माइनस 2 m 2 रेज़ टू पावर व्हाट 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, राइट। ये आपके पास क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब जब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है, e की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, e की वैल्यू क्या है 2.7183 रेज़ टू पावर व्हाट माइनस 2 की पावर जो करोगे 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 आपके पास आ जाता है, e रेज़ टू पावर माइनस 2। अब ये आपके पास गिवन आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 2 क्या होता है 0.135 होता है, 0.135। तो आपके पास जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव बल्ब्स इज व्हाट 0.135, आपके पास क्या होगा आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसी बेसिस पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे देता हूं कि पहला केस तो ये था, फर्स्ट केस कि कोई भी डिफेक्टिव ना है, अब मैं बोल देता हूं एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आ जाए। अब 1 डिफेक्टिव आ जाना, सेकंड केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, p ऑफ x को क्या करना है 1 कर देना है, e रेज़ टू पावर माइनस m अगेन आपके पास ये सेम रहेगा माइनस 2 m 2 है, अब x इस केस में 1 आ जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, राइट। e माइनस 2 की पावर अगेन 2.713 रेज़ टू पावर माइनस 2, अब इसमें मल्टीप्लाई में क्या होगा 2 अपॉन 1। इसको आप अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जो कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.270 के करीब आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब वो इतना आ जाएगा, 0 डिफेक्टिव बल्ब आपके पास क्या आ जाएगा, x को अगर मैं 0 करता हूं वो आपके पास ये आ जाएगा। अब एक और चीज मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अगर ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली जाती है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, राइट। पहले 0 का केस निकाला, फिर मैंने 1 का निकाला, अब नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, नॉट मोर देन 2 मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट, 2 हो सकता है, नॉट मोर देन 2, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, राइट, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, ये आपने क्या करना है, निकाल देना है। 0 की आप निकाल चुके थे 0.1353, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की आप निकाल चुके थे 2.7 कितनी थी 0.2703, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की आपने निकाल देनी है, सेम फॉर्मूले में एंटर कर देना है, e माइनस 2 रेज़ टू पावर व्हाट 2 आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे आपके पास का आंसर आ जाएगा नॉट मोर देन 2, राइट। तो ये क्या मेरे पास था, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज व्हाट, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज
Poisson distribution. The thing that you have to remember in case of Poisson distribution is that in case of Poisson distribution is n जो है मेरे पास n is infinite, p जो है मेरे पास it approaches 0, q approaches to 1. Whereas in case of binomial distribution, binomial जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी, उस केस में क्या है, n is always finite. Right? There is some particular value of p की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, q की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. राइट? वो कौन सा केस था? वो बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन केस था. और ये कौन सा केस था? ये मेरे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का केस था. The thing is, this is the difference between these two distribution. And what is the similarity between these two distribution is both these distributions are both these distributions are discrete probability distributions. Right? So this is all about today's class. Next we will discuss one more theorem, that is one more distribution, sorry, that is what? That is normal distribution. Right? Thank you.